chapter gravitation we have already discussed, students, and you have idea about the universal gravitational force and universal gravitational law. In this video we will discuss few MCQs and one numerical. So let's start. First question is, an apple falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and the apple. If F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of the force exerted by apple on the earth. So your options are F1 is very much greater than F2, F2 is very much greater than F1, F1 is only a little greater than F2, and the fourth option is F1 and F2 are equal. So students, according to universal law of gravitation, each and every object attracts other object with the same magnitude of the force. So the option D will be right. F1 will be equal to F2. ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ लिया है और हम जानते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टेरेस्ट्रियल बॉडीज एंड ऑल सेलेशियल बॉडीज. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय gravity, wind, clouds, Earth's magnetic field. So the right answer is gravity. Next question is, the force of attraction between two unit points masses separated by unit distance is called gravitational potential, acceleration due to gravity, gravitational field, or universal gravitational law. So students, we have formula that the attraction force between the two objects with the mass m1 m2 and the distance kept at d square. This is the formula. F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Now we have the unit point masses, means हमने जो मास है वो 1 kg ले लिया है और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया 1 मीटर. सो द F विल बिकम 2 इक्वल टू G. ये M1 1 kg, M2 1 kg, D 1 मीटर अगर हमने ले लिया तो F विल बिकम इक्वल टू G. मीन्स ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी, कैपिटल जी इज एक्चुअली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नाउ क्वेश्चन 4. टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस. इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड keeping the distance between them unchanged, the value of the gravitational force between them will be. So let's put the यहाँ हमने पहला फोर्स लिया, इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं G कांस्टेंट है, मास को क्या किया गया है? डबल कर दिया गया है. तो M1 को भी डबल और हमारा 2 जो M2 है उसको भी डबल कर दिया. तो हमने ये मास को डबल कर दिया. अब देखिए डिस्टेंस तो उतना ही है, तो ये आप देख रहे हैं कि 2 2 ज़ा 4, G कांस्टेंट तो है. नया जो फोर्स हमारा आ रहा है F डैश, अगर आप मानते हैं उसको तो G से G कैंसिल आप कर सकते हैं. 4 M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. सो अगर आपने मास को डबल कर दिया तो जो न्यू फोर्स आपका आना चाहिए, ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है. कलर चेंज करके बताते हैं कि ये फोर्स का फॉर्मूला था. अब इसके पास आपने क्या किया कि मास को डबल कर दिया, ये 4 आपका आ रहा है. मीन्स F1 आपका 4 टाइम्स हो जाएगा F के. ठीक है, तो हम इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, 4 टाइम्स हो जाएगा अगर मास को हमने डबल कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर सरफेस ऑफ द मून would have the same velocity at an instant.
हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन तो डिफरेंट हो नहीं सकता, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून है वो सेम है। तो एक जगह दोनों ऑब्जेक्ट पे ये acceleration due to gravity of the moon will be same, experience forces of the same magnitude। नहीं, फोर्स जो है वो डिपेंड करता है उनके मास पे, तो ये मास सेम नहीं होगा, फोर्स सेम नहीं, मास अगर सेम नहीं है तो फोर्स भी सेम नहीं होगा। undergo a change in their inertia, तो they are already started फॉलिंग, तो इसमें इनर्शिया का भी रोल नहीं है। सो द ऑप्शन ए विल बी राइट। दे हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उनकी किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल्स, is least on poles, is least on equator, increases from pole to equator. So we have already solved the question that one person bought the gold at the पोल्स, तो पोल्स पे जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो इक्वेटर पे जब चला आया उस गोल्ड को लेकर, तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 9.7 अराउंड मीटर पर सेकेंड ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है। तो इक्वेटर पे आप ये देख रहे हैं, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है पोल के कंपैरेटिवली कम हो जाती है, तो इट इज़ लीस्ट इन इक्वेटर। और इसके लिए अगर हमें गोल्ड, अगर हमने 100 ग्राम्स खरीदा है, मास इसका 100 ग्राम है, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो वेट है, वेट इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर अगर हमने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा इक्वेटर पे, तो इट विल बी अराउंड 970 ग्राम्स, लेकिन उसका जो वेट है सेम 100 ग्राम्स का वेट पोल्स पे जाकर 983 ग्राम्स हो जाएगा। इट मीन्स कि वेट में 0.5% अगर हम पोल्स पे जाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा हमने सीखा था। फिर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F इफ द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। ये क्वेश्चन अभी के अभी हमने किया है कि F हमारा G(m1) m2 अपॉन डी स्क्वायर, हमने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, और हमने क्या कर दिया, जो नया फोर्स आया उसमें हमने मास को हाफ कर दिया, m/2 कर दिया इंटू m/2। तो इसका भी दोनों बोथ द ऑब्जेक्ट्स के मास हमने हाफ कर दिए, तो ये भी आपका हो जाएगा m/2 इंटू डी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नया फोर्स आ रहा है ये बाकी वैल्यू सेम है, 1/4 G(m1) m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब कि जो न्यू फोर्स है वो 1/4 F/4 हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी A। Now this question is two objects of masses m1 and m2 having the same size, इनका साइज सेम है, ठीक है, m1 और m2। दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उनको ड्रॉप किया गया, हाइट h1 से ड्रॉप किया गया और दूसरा h2 फ्रॉम द हाइट्स h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम दे वुड टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। Will the ratio remain the same if one of the objects is hollow and the other one is solid and both of them are hollow, since remaining the same in each case? तो इसमें स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो आप इसमें देखेंगे कि u तो इनिशियल वेलोसिटी, तो जब वो फॉल कर रहे हैं तो ज़ीरो है, तो ये पूरा स्टेप आपका ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ आपके पास हाफ GT स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है, इसमें भी आप देखेंगे हाफ GT स्क्वायर। इसमें मास का बेटा कहीं पे h1 आप देख रहे हैं, यहाँ पे h2 देख रहे हैं, तो यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं है।
इट मीन्स कि जो ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पर, और जी की वैल्यू एक पर्टिकुलर प्लेस पे कांस्टेंट होती है। जी एक प्लेस पे हमने देखा कि कांस्टेंट होती है। तो इसमें जो चाहे वो हॉलो साइज हो, इनके साइज में सॉलिड हो या हॉलो हो, दे विल reach the ground at the same time. The next question is, a stone is allowed to fall on the top from the top of the tower 100 meter high. तो ये हमारे पास टावर है 100 मीटर हाइट का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला स्टोन है जिसे कि स्टोन आप कह सकते हो वन स्टोन 100 मीटर से फॉल करवाया, और दूसरा स्टोन वर्टिकली हम ऊपर फेंक रहे हैं। तो सपोज ये आकर एक्स पे दोनों मिल रहे हैं। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो हमने सपोज किया कि ये एक्स हाइट पे मिलेंगे। तो जब ये एक्स पे ये स्टोन 2 आपका एक्स हाइट पर पहुंचता है, तो दूसरा जो स्टोन है वो भी यहाँ पे डिस्टेंस कवर करके ये डिस्टेंस आपका हो जाता है 100 माइनस एक्स। तो हम स्टोन 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं कि इसे कितना टाइम लगेगा यहाँ पर एक्स पर पहुँचने के लिए। तो हमारा हाइट हो गया, फॉर्मूला जो हमारे पास है ut प्लस हाफ AT²। तो हमने यहाँ पर हाइट रख दिया 100 माइनस एक्स प्लस ये जो ut है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड 9.8 हमने रखा, और ये t²। तो ये कैंसिल हो गए। अभी आपके पास 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 t² हो गया। ये हमने इसे इक्वेशन 1 कर लिया। अब सेकंड हम देख रहे हैं कि जो हाइट है एक्स हाइट पे जाने के लिए उसे कितना टाइम लगता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT² और GT²। यू कैन से g यहाँ पे वैल्यू हमको रखनी है। तो u इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 इंटू t प्लस 1/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की जब ये स्टोन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल बी इन माइनस। तो ये माइनस 9.8 t²। सो वी विल हैव 25t x इज इक्वल टू 25t प्लस माइनस माइनस 4.9 t²। अब हमने इसे इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेट करते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब हम यहाँ पर ये x प्लस कैंसिल, ये x माइनस कैंसिल, ओके, ये प्लस 4.9 t² कैंसिल, ये माइनस 4.9 t² कैंसिल। सो नाउ वी हैव 100 is equal to 25t. So t is equal to 100 upon 25. So we can say t is equal to 4 seconds. तो ये हमारा टाइम तो आ गया। अब इन्होंने हाइट भी पूछी है कि वेयर, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो हम पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 t²। तो t की वैल्यू अभी हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया। तो अब हमारे पास क्या हो गया 4.9 इंटू 16 एंड इट इज इक्वल टू
78.4. इज इट क्लियर? तो ये 100 माइनस x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई 18.4. तो अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, x को इधर लेके जाते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, तो हमारा हो जाता है 100 माइनस 78.4 इज इक्वल टू x. तो ये आप x की वैल्यू अब आपकी फाइंड आउट कर लेते हो आप इसमें से. तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपकी वैल्यू आ गई 21.6 मीटर इज इक्वल टू x. तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर ये x क्योंकि हमने ग्राउंड से लिया था तो इसमें फिर से वापस आते हैं. तो ग्राउंड से 21.6 मीटर हाइट पर ये स्टोन मिलेंगे, या जो ऊपर वाला जो स्टोन 1 जिसको हमने कंसिडर किया था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका होगा उस समय तक, 78.4 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लिया होगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. You have to write all the steps to solve this question. Thank you.